फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 1 हम ओपन करते हैं। Let us turn to 1 Corinthians chapter 1. उसका 26 वचन हम देखते हैं। We'll go to verse 26. For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble. ये वचन हमको कुछ बातें बताती है प्रिय भाइयों और बहनों। So this verse is trying to explain something to us. यहाँ पर लिखा है कि अपने बुलाए हुए को जरा जानो और जांचो। So here it says that examine your calling or consider your calling. हमारा जो बुलाहट है प्रिय भाइयों और बहनों, वो कोई मामूली बुलाहट नहीं है। So the calling of ours is not something ordinary. कई बार कुछ चीज अपने हिसाब से जब नहीं होता है, हम स्ट्रेस में आते हैं, हम डीमोटिवेट होते हैं और हम सोचते हैं क्या लाइफ हम जी रहे हैं। So many times when things don't happen according to our ways, we get demotivated, we are under stress. लेकिन परमेश्वर का बुलाहट हमारे लिए एक पवित्र बुलाहट है। But the calling of the Lord is something holy. यहाँ पर जितने भाई बहन मौजूद हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। So all the brothers and sisters that are present here, God has called you. क्योंकि बाइबल कहता है कि कोई भी यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर उसको खींच के अपनी ओर लाता है। Because the word of God says that whoever draws nigh to Jesus Christ, it is God who brings him to himself. आपको और मुझे लाने वाला कौन है? Who is the one who brings you and me? कोई मनुष्य नहीं। It is not any man. कोई आपका अंकल आंटी मम्मी पापा नहीं है। It is not our uncle or auntie or a mother or father. ये परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको देखा और चुना और बुलाया है। It is the Lord who saw you from heaven and he called you and he has chosen you. तो मैं आज उसके ऊपर ही बात करना चाहता हूँ And I want to talk about that calling. कि आपके बुलाए हुए जाने को सोचो। That thing, consider your calling. प्रिय भाइयों बहनों, कई बार हम डिस्करेज लाइफ जीते हैं। So many a times we live a life that is full of discouragement. क्यों? उसका रीजन ये है कि हम अपने बुलाहट की कॉलिंग को भूल गए हैं। Because we have forgotten the calling that we have from हमारे God. लाइफ का पर्पस भूल गए हैं। We have forgotten the purpose in our life. बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन कहता है ज्ञानवंत को परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। So the word over here says that the Lord has not called the wise. सामर्थियों को परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। He is not called the mighty. लेकिन परमेश्वर ने किसको बुलाया है? Who has God called? जिसको इस संसार में कोई आदर नहीं, वैल्यू नहीं, जीरो, शून्य, उन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। The Lord has called those who do not have much value in this world. जब हम उसके वचन के आगे पढ़ते हैं, So when we read further, वो 26 के आगे देखो, वहां पर 27 वचन में देखो, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। in verse 27 it says, God has chosen the foolish things of this world. यहाँ मूर्ख क्यों कहा गया है? Why is it called foolish? क्या हम फूलिश है? Are we foolish? यस। Yes. क्यों? Why? क्योंकि हमने यीशु को अपनाया है। Because we have chosen Jesus इसलिए Christ. संसार हमें मूर्ख समझता है। That is why the world considers us foolish. बाइबल कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। So the word of God says that the gospel of Christ is foolishness to those who are going to perish. हम जब यीशु के पास आते, प्रार्थना में आते, प्रभु के साथ जीना चाहते, लोग उसे मूर्खता समझते हैं। So when we want to live a life that is free from sin, when according to our calling, people think this is foolishness. और जो लोग मूर्ख है, ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना है। And those who are foolish, those are the people whom God has chosen. संसार आपको मूर्ख कहेगा, The world will call you foolish, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन वहीं पर आता है। but that is our qualification. जो लोगों को संसार मूर्ख कहता है, वो क्वालिफाइड हो गए परमेश्वर के राज्य के लिए। So whoever the world calls foolish, they are qualified for the क्योंकि kingdom of आप God. यीशु के लिए पागल कर ठहराए गए हो। Because you have been called mad for the sake of Jesus Christ. यहाँ पर क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है Here it is written, God has chosen the foolish things of this world कि ज्ञानवंत को लज्जित करे, to shame the wise. और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना है And God has chosen the weak things of this कि world बलवानों को लज्जित करे। to shame the things which are strong. और उसके आगे लिखा है 28 में, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो कुछ है ही नहीं, उनको भी चुन लिया है। In verse 28 it says, and the base things of the world and the despised God has chosen. So The प्रिय things-
सो प्रिय भाइयों बहनों, हमको जो चुना है वो परमेश्वर ने चुना है। And the Lord has chosen each one of us. कैसे चुना है? How has He chosen बुद्धिमानों us? को नहीं, जब हम मूर्ख थे तब हमें चुना है। Not the wise, but when we were foolish, the Lord has chosen us. और जब हम निर्बल थे उस अवस्था में प्रभु ने हमें चुना है। And when we had no strength, in that condition, the Lord has chosen क्यों? us. ताकि हम में से एक भी जन घमंड न करे, Why? So that we cannot boast in our own हम में self. से एक भी जन कह नहीं सके अरे मैं तो एलिजिबल था ये चीज के लिए। So that none of us can say that I was eligible for this हम में calling. से कोई भी एलिजिबल नहीं था। We were not eligible. परमेश्वर ने फिर क्यों चुना हमें? Then why did the Lord choose us? हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1:9 में We'll turn to 2 Timothy verse 1. कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, उसने क्यों चुना। We can see here why has the Lord called us. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1:9 In 2 Timothy chapter 1 verse 9. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में अनादि काल से हम पर हुआ है। देखो यहाँ पर अद्भुत एक वचन लिखा है। So this is such an amazing verse. ये वचन क्या कहता है? What does this verse say? जिसने हमारा उद्धार किया The one who has saved और us पवित्र बुलाहट से बुलाया है, and called us with a holy calling. वो हमारे कर्मों के अनुसार नहीं है, It is not according to our works, लेकिन वो उसके अनुग्रह के अनुसार है। but it is according to His purpose देखो and हमारा grace. क्वालिफिकेशन क्यों हुआ है? Why are we qualified? क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग से अपना अनुग्रह आप पर और मुझ पर किया है। Because the Lord from heaven has poured out His grace upon you and me. हमारा कर्म हमको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। It is not our works that was able to qualify us. सोचो, स्वर्ग से परमेश्वर ने देखा आपके ऊपर और कहा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसे चुनता हूं। So imagine the Lord looked down upon you and He said that this is my child, this is my son. देखो परमेश्वर का वचन हमारे लिए कुछ कहता है। And the word of God calls us something. पहला पत्रस, ये वचन कभी मत भूलो, पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 9वां वचन। In 1 Peter chapter 2 verse 9। verse 9. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। देखो यहाँ पर लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। So here in 1 Peter chapter 2 verse 9 it is written, you are a chosen race. देखो परमेश्वर ने हमें चुना हुआ, हम सब एक उसकी समाज है। So the Lord has called us that we are His nation, the देखो, chosen one. चुनने वाला कौन है? Who is the one who is choosing us? परमेश्वर है। It is the Lord. उसने हम में से हर एक लोगों को अलग अलग जात धर्म से बुलाकर यहाँ इकट्ठा किया और एक जाति बनाया है। He has called us from different places, from different caste and religion, and has chosen us and brought us here. और उधर लिखा है राजपदधारी याजकों का समाज A royal priesthood, और पवित्र लोग, a holy nation. और उसके आगे जो लिखा है वो मुझे दिल को छू जाता है। And the thing that is written further touches my heart. वहां लिखा और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, A people for God's own possession. गॉड्स ओन पोजीशन। वाओ, कितना अद्भुत है ना, परमेश्वर की नीच प्रजा। So this is such an amazing thing that God says, a people for God's own possession. देखो हमारा कुछ चीज है, हम बोलते हैं ये मेरा है, So if we own something, we say this is mine. हम बोलते हैं ये मेरा है, We say this is mine. हक के साथ बोलते हैं ये मेरा है। With full authority, we say this is mine. स्वर्ग का परमेश्वर आपको और मुझे देखकर कहता है ये मेरा है। The God of heaven and earth says that this child is mine. अमेजिंग, राइट डियर मिस्टर? This is such an amazing कि thing. परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है आपको देखकर कहता है ये मेरा स्पेशल पोजीशन है। The one who has created the whole universe says that this is my possession. ये जब वचन में पढ़ता हूँ डियर मिस्टर, मैं सोचता हूँ मैं ये योग्य नहीं था, And when I read this word, I see that I was not worthy. लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे अपना स्पेशल पोजीशन कहकर पुकारता है। But the Lord calls us His own special possession. सो प्रिय भाई बहनों, अपने लाइफ और अपने बुलाहट को तुच्छ मत जानो। So dear brothers and sisters, let us not think low about our calling. आप परमेश्वर की नीच प्रजा हो, We are His chosen generation. आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। We are not a normal person. यहाँ पर बैठे हुए बच्चे भी मामूली नहीं है। The children sitting over here are also not normal people. इन बच्चों को आपको और मुझे अलग बनाने वाला एक चीज है, क्या है पता है आपको? So there is something that
sets us apart. निर्गमन में एक्सोडस में बाइबल में वचन लिखा है, मूसा कहता है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो हमको संसार के लोगों से अलग बनाता है। So the Exodus says that the Lord's Spirit separates us from the things of this world. या परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है, Because the Spirit of the Lord is within us, वो इस संसार के लोगों से हमें अलग बनाता है, and it makes us different from this और world. कोई चीज नहीं है, And there is nothing else. सिर्फ परमेश्वर का आत्मा It is the Spirit of जो the हमारे Lord भीतर रहता है, that is within us, वो हमारे स्वभाव को बदलता है that changes our और character संसार के लोगों से अलग बनाता है। and separates us from this अभी world. एनी को अलग किसने बनाया है? Who has made Annie different? परमेश्वर की आत्मा ने। It is the Spirit of the Lord. उसकी क्लास में बहुत से बच्चे होंगे, There might be many children in her class, लेकिन एनी के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, but the Spirit of the Lord is within वो Annie. उसको यूनिक बनाता है। That makes her unique. परमेश्वर बोलता है ये मेरा स्पेशल पोजीशन है। The Lord is saying that she is my special possession. वंडरफुल डियर वन सिस्टर, परमेश्वर जब आपको और मुझे देखता है तो ये मेरी नीच प्रजा है। So when the Lord looks upon us, He says that these are my chosen people. अपने लाइफ को कभी भी ऐसा मत सोचो मेरा जन्म क्यों हुआ, क्या लाइफ जी रहा हूं। नो, Let us not think that why was I born, what kind of a life I'm living, ये साथ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। why is this happening with आपको me? पता है क्यों हो रहा है ये सब आपके साथ? You know why this is happening क्योंकि with you? परमेश्वर ने आपको चुना है, Because the Lord has chosen इसलिए you. ये सब कुछ हो रहा है। That is why this is क्योंकि happening. परमेश्वर उन बातों से आपको कुछ सिखाना चाहता है। Because the Lord wants to teach us something through that. सुप्रिय भाइयों trial. बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इफिसिया 1:4 में लिखा है परमेश्वर ने बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड आपको और मुझे चुना है। In Ephesians 1 verse 4 it says that the Lord has chosen us from before the foundation of this ऐसा world. नहीं कि प्रभु अभी इकट्ठा कर रहा है ना, हाँ चलो किरण को इधर ले लो अभी चुन रहा है, नहीं 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 नहीं। मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में भी नहीं था, तब परमेश्वर की योजना मेरे लिए थी। It is not that the Lord is just collecting people now saying that Kiran brother you come now and you'll be saved, but it is before the foundation of the world, before I was born in my mother's womb that the Lord knew me. सोचो मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था उस समय परमेश्वर ने कहा किरण वो मेरा नीच प्रजा होगा। So imagine that when I was not even formed in my mother's womb, the Lord says, Kiran, you are my chosen possession. प्रिय भाई बहनों, जब जब ये वचन पढ़ता हूँ 1 पीटर 2:9, रियली मुझे परमेश्वर की महान दया और कृपा याद दिलाती। So when I read the verse from 1 Peter chapter 2 verse 9, I really understand the love of God. कि परमेश्वर आपको और मुझे कितना प्यार करता है। That the Lord loves us so much. हम इतनी गलतियां, हम इतने गुनाह करते हैं, फिर भी वो हमसे प्यार कर कर अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी करके बुलाता है। We make so many mistakes and grievous sins, but still the Lord calls us His private property. सो आपको पता है, आवाज वॉल्यूम थोड़ा बड़ा शालो, आपको पता है प्रिय भाइयों बहनों कि आपको जब परमेश्वर ने बुलाया है, So when the Lord called you, कितने लोग उसमें रिजेक्ट हो गए? how many people were rejected? आपको पता है? Do you know it? देखो परमेश्वर ने सबको बुलाया है, The Lord has called everyone, लेकिन बाइबल कहते हैं चुने हुए बहुत कम है। but there are few that are chosen. और आपको कहता हूं भजन संहिता 4:3 में आप पढ़ो, उसमें लिखा है परमेश्वर ने अपने भक्तों को पहले से चुन रखा है। So in Psalms verse 4, chapter 4 verse 2 it says, 3 Psalms chapter 4 verse 3 it says, But know that the Lord has set apart the godly man for himself. देखो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने अपने लिए लोगों को पहले से इकट्ठा कर दिया है। So here it says that the Lord has set apart the godly man for himself. अपने लिए चुन रखा है He परमेश्वर ने, has chosen them for और himself. वही लोग परमेश्वर का पीछा करेंगे, And they are the ones who will follow the Lord. बाकी सारे लोग भटक जाएंगे। The other people will go astray. तो परमेश्वर का अनुग्रह बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों बहनों। But that's why the grace of God is very तो important. परमेश्वर ने आपका और मेरा चुनाव किया है। The Lord has chosen you and me. देखो पहला इतिहास में हम देखते हैं, In First Chronicles, पहला शमूएल में in First Samuel, उसका 16वां अध्याय में हम देखते हैं in chapter 16, जब परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए दाऊद को चुना, when the Lord chose David to be the king तब of शमूएल Israel, को वहां पर भेजा था। then he sent Samuel. और उसका 16वां अध्याय के 7वें वचन में हम देखते हैं, In chapter 16 verse 7 we see, वहां पर शमूएल ने उसके भाई बड़े भाई को देखकर कहा ये परमेश्वर का जन है, प्रभु ने इसको सिलेक्ट किया होगा।
And Samuel saw David's elder brother and he said, "This is the chosen one from God." देखो लेकिन वहां पर क्या लिखा है, But what does the Lord say? परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर और दृष्टि कर और न उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। But the Lord said to Samuel, "Do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him." देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, So here it is written clearly, दाऊद के भाइयों को नहीं चुना परमेश्वर ने, he did not choose the brethren of David. डेविड को चुना। He chose David. बाकी भाई लोग क्या हो गए? What was about the other गॉड brothers? ने रिजेक्ट कर दिया, He rejected them. रिजेक्टेड देम। Rejected them. आपके भाई लोग किधर है? Where are your brothers? रिश्तेदार किधर है? Where are your relatives? आपके फ्रेंड्स किधर है? Where are your friends? रिजेक्टेड, They are rejected. क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। Because the Lord has chosen us. तो मैं कई बार परमेश्वर का आभार मानता हूं कि कितने मेरे भाई बहन लोग हैं, उसमें से प्रभु का अनुग्रह मुझ पापी पर हुआ। That is why I am grateful to the Lord that there are so many people around me, but the Lord showed grace to me. मेरे कितने सारे रिश्तेदार हैं, उसमें से परमेश्वर ने मुझको चुना। So out of all my relatives, the Lord chose me. क्या आप ये बात को विश्वास करते हो? Do you believe this? सोचते हो ये बात को Do you think or ponder upon this? कि इतने सारे लोग थे, प्रभु ने मुझ पे अनुग्रह किया। There were so many people, yet the Lord had grace and mercy upon me. दाऊद को ये बात मालूम है। David knew this thing. देखो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ये बात जो हमने पढ़ा अभी, So the word that we read right now, ये दाऊद को अच्छी तरह मालूम है। David knew this. देखो हम फर्स्ट क्रॉनिकल्स में देखते हैं, In First Chronicles उसका 28 अध्याय, chapter 28, उसका 4 वचन, verse 4. 28 वर्स 4। तो भी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया। वाओ, देखो उसको पता है ये टेस्टिमनी। So he knew this testimony. वो कहता है मेरे पीरे पिता के पूरे घराने में से He says, from the entire household of my परमेश्वर father, ने मुझको चुना। the Lord chose me. आगे क्या लिखा है? कि इज़राइल का राजा सदा बना रहूं, अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के पुत्रों में से वो मुझी को सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। वाओ, यहाँ पर लिखा है मेरे पिता के जितने पुत्र थे उसमें से पिता की प्रसन्नता किसमें हुई? मुझको बनाने के लिए। So here it is written that among all the sons, he took pleasure in me. सो प्रिय भाइयों बहनों, कितने सारे लोगों को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया होगा आपको और मुझे चुनने के लिए। So there were so many people that were rejected to choose you and me. जो लोग आज प्रभु के पीछे नहीं है, So the people who are not walking after the जो Lord, लोग आज आपको मूर्ख समझ रहे हैं, those people who think that you are foolish. देखो डेविड के भाई लोग उसको मूर्ख समझते थे। David's brothers used to think that he is foolish. जब वो बैटल के लिए जा रहा था, बोल रहा तू इधर क्यों आया है? So when he wanted to go for battle, they asked him, "Why did you come तू here?" जा, तू वहां पे गाय भैंसों को चरा। So he said that you go and take care of the sheep. सो प्रिय भाइयों बहनों, लोग हमको मूर्ख समझेंगे, So the people will think that we are foolish. लेकिन आप चुने हुए वंश हो, But we are a chosen generation. आप परमेश्वर के प्रिय लोग हो। We are very dear before the Lord. इसके लिए अपने बुलाए हुए जाने को कभी भूलना मत। And that's why do not forget your calling. सी इफिसिया अध्याय 1 के 4 और 5 में हम पढ़ते हैं फिर से। In Ephesians chapter 1, वहां पर लिखा है उसने अपनी इच्छा के सम्मति के अनुसार, उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले से चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। so in Ephesians chapter 1 verse 4 it says, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before him. देखो परमेश्वर का हमें चुनने का 2 मकसद था। So there were two purpose for which the Lord called us. वो हमें पवित्र करना चाहता था He wants to make us holy, और उसके सम्मुख में निर्दोष ठहराना चाहता था। and he wants us to be blameless before him, निष्पाप नहीं, not without sin. हम सबने पाप किया है, We all have sinned, लेकिन यीशु के जरिए हमें निर्दोष ठहराना चाहता था। but through Jesus Christ he wants to claim us blameless. सो आपका और मेरा बुलाया जाने का रीजन है What is there is a reason for which कि हम God has called परमेश्वर us, के सामने पवित्र और निर्दोष ठहराए so जाए। that we can stand before God holy and और blameless. उसके 5वां वचन में लिखा है, In verse 5, और अपनी इच्छा के सुमिति के अनुसार अपने
उसने हमारे लिए पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके लेपालक पुत्र हो। He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to himself, according to the kind intention of his will. देखो उसका गोल यही था कि हम यीशु मसीह के जैसा बने। So his only goal was that we would also be like Jesus Christ. हमारा जो रिश्ता पिता ने यीशु मसीह के द्वारा उसके पुत्र लेपालक पुत्र का बना दिया। So through God restored our relationship with him through his son Jesus Christ. सो प्रिय भाइयों बहनों, हम कुछ भी नहीं थे, We were nothing, लेकिन परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के भाई बना दिया but the Lord made us the brothers of Jesus Christ. और हम परमेश्वर के पुत्र ठहराए गए। And we are called the sons of Jesus. और of the शैतान Lord. आपको देखकर डरता है। And Satan trembles when he looks at क्यों? you. क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। Why? Because we are the chosen people of the उसको Lord. बाकी लोगों से मतलब नहीं है, He's not bothered about other people. लेकिन आपको जब देखता है वो डर जाता है, But when he looks at you, he's trembling. क्योंकि परमेश्वर क्लेम करता है दे आर माई स्पेशल पोजीशन। Because the Lord claims us as his possession. हाँ, परमेश्वर बोलता है, ये जैसे उसने आयुब के विषय में कहा, ये मेरा प्रिय बेटा है। So the way he spoke about Job, that this is my beloved son. आज योब नहीं है, आज आयुब नहीं है, Today Job is not here. आज कौन है? Who is the one आप now? और मैं है इधर। It is you and me. परमेश्वर हमें देखकर ये कहेगा, The Lord is looking at us and saying ये this, मेरे बच्चे को देख। that this is my child, look at him. पाप करने पर वो डरता है, When he sins, he trembles. वो चाहता है मन फिराकर वापस परमेश्वर के पास आए। He wants to repent and return to me. वो हेट करता है, नफरत करता है पाप से। He hates sin. सो ऐसा एक टेस्टिमनी हमारा और आपका होना चाहिए प्रिय भाई बहनों। Let this be our testimony, dear brothers and sisters. परमेश्वर बोल्डली कह सके, देखकर शैतान ये मेरे बच्चे कैसे जी रहे हैं। So that the Lord can say boldly, see how my child is living. तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऐसा जीवन जीने के लिए हमें सहायता करता है। The Holy Spirit helps us to live such a ये life. हमारे ताकत से हम नहीं कर सकते, We cannot live this by our own लेकिन strength. हम जब डिपेंडेंट होते प्रभु के ऊपर, When we depend on the Lord, तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। then the Lord helps us. सो इब्रानी अध्याय 1:8 में ऐसा वचन लिखा है कि In Hebrews chapter 1 verse 8 it is written, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। सॉरी, नॉट दैट वन, 9 सॉरी 1 verse 9। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। तो ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि यीशु मसीह ने धार्मिकता से क्या किया? प्रेम किया। so here it is written about Jesus Christ that you have loved righteousness and hated lawlessness. देखो, डूइंग राइचियसनेस एंड लविंग राइचियसनेस डिफरेंट है, राइट? So doing righteousness and loving righteousness are two different देखो, things. डूइंग करने में कई बार हम फेल हो जाते हैं, So many times when we try to be righteous, that is a different thing. We fail. लेकिन लविंग राइचियसनेस ये परमेश्वर देख रहा है। But the Lord is looking whether we love righteousness. आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है? Do you understand the difference? देखो, डूइंग राइचियस मतलब हम एक धर्मी जीवन जी रहे हैं, So doing righteousness means we are trying to live a righteous लेकिन life. हो सकता है कि हम उससे प्यार नहीं कर रहे हैं, But it can be that we do not love righteousness. है ना? मतलब चोरी मत कर, हमारे अंदर हाँ चोरी करना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। So, as the commandment says, do not steal, but we in our hearts say that because the Lord is saying, we are not doing it. कहीं से गलत पैसा आता रहेगा, अरे मुझे वो चाहिए था, लेकिन मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। So, I could have earned money in a wrong way, but because the Lord is saying, okay, I'll not do it. ये मतलब आप धार्मिकता कर रहे हो, But here you are performing लेकिन उससे righteousness, प्यार नहीं कर रहे। but you are not loving it. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? But what is written over यीशु here? ने धार्मिकता से प्यार किया। Jesus loved righteousness. उसका मतलब है This means हम चाहे फेल भी हो गए कुछ करने में, that even though we fail, लेकिन हम चाहते प्रभु मैं आपके वचन से और आपकी आज्ञा से प्यार कर सकूं। so we desire this, that we would be able to love the commandment of the Lord. उसका अर्थ ये है कि मुझे पाप करने का अवसर मिल रहा है, मैं कहूंगा मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज आई हेट इविल। So here we can say that I am getting an opportunity to sin, but I hate sin. सो प्रिय भाइयों बहनों, करना और चाहना
वो अलग बात होती है। So doing something and desiring something are two different things. सो हम हमारे लिए हमारा कॉलिंग यही है, हम डिजायर करें वो प्यार के लिए। So our calling is that we desire to love righteousness. करना नहीं करना परमेश्वर हमें ताकत देता है, हम करते हैं, कई बार हम फेल हो जाते हैं। So doing or not doing, that is a different thing. Sometimes the Lord gives us strength. बट लेकिन जब हम फेल होते हैं, But when we fail, हमारे अंदर ये होना चाहिए, लॉर्ड स्टिल आई लव यू, मैं आपके आज्ञा का अभी भी पालन करना चाहता हूँ। so even after we fail, we should have this desire that Lord, still I want to follow your law. ये इधर लिखा यीशु लव्ड राइचियसनेस, मतलब उसने प्यार किया परमेश्वर की आज्ञा को। So Jesus loved righteousness. He loved the commandments of the Lord. सो प्रिय भाई बहनों, हम सबका भी मोटिव यही होना चाहिए। So this should also be our motive. तो परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहराया, बुलाया, निर्दोष ठहराया। So the Lord has called us righteous. He has chosen us. हमने सुना हम एक रॉयल प्रीस्टहुड है, We are a royal priesthood. परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, We are the chosen people. परमेश्वर के स्पेशल पोजीशन है। We are a special लेकिन possession. बाइबल कहता है उसके पवित्रता के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। But the Lord says that we have to walk according to His holiness. तीमुथियुस को पौलुस यही लिखता है। He says this to Timothy तो हम देखते हैं पहला तीमुथियुस in 1 Timothy. सॉरी इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1। Ephesians chapter 4 verse 4. इफिशियंस 4:1 में लिखा है, सो मैं जो प्रभु ने बदवा में तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। 4 verse 1। 4 verse 1. Okay. Therefore, I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. देखो यहाँ पर लिखा है जिस पवित्रता से हमें बुलाया है उसके वर्दी हमें एक लाइफ जीना है। So the calling that we have to walk worthy of that calling. हम कैसे भी नहीं जी सकते। We cannot just live the way we want. हमें परमेश्वर की आज्ञा और उसका अनुसरण कर कर पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर हर दिन चलना है। We need to follow the commandments of the Lord, listen to the voice of the Holy Spirit and walk. हर दिन हमारे लाइफ में एक टेस्ट होगा Every day we'll have a test. और ये टेस्ट हमें और होली बनाएगा, And this test will make us more holy. और यीशु जैसा बनाएगा। It will make us more like Jesus आखिर में Christ. परमेश्वर का योजना यही है कि हमें यीशु जैसा बनाए। And the Lord's plan is to make us like Jesus Christ. प्रिय भाइयों बहनों, एक वचन बोलकर मैं खत्म करता हूँ। I want to speak about a verse and close. 1 तिमुथी 1 और 12 में लिखा है, In 1 Timothy verse 1, 1 verse 12, chapter 1 verse 12, वहां पर पौलुस कहता है परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर बुलाया है। and here it says that the Lord has considered me faithful and called. देखो परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना जरूर है, That the Lord has chosen us, बट परमेश्वर ने अपना ट्रस्ट हम पर दिखाया है। but the Lord has trusted us. वो कहता है, पौलुस कहता है, प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य मैं रहूंगा ये सोच के मुझे बुलाया है। The Lord has seen and considered me faithful and called me. सो प्रिय भाई बहनों, प्राण जाने तक हमें फेथफुल रहना है। So till our lives are taken away, we need to be faithful. देखो बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है, उसमें से भी फेथफुल बहुत कम है। So many are called, but few are chosen, and among those chosen, few are faithful. सो हमको चुना हुआ, बुलाया गया और फेथफुल तक रहना है, वो हमारा गोल हो जाए। So we have been chosen, but now our journey is to move towards faithfulness. या हम बुलाए गए हैं, We have been called, चुने गए हैं, we have been इधर chosen. तक पक्का है, So here it is for sure. लेकिन आगे फेथफुली लाइफ जीना But ये परमेश्वर हमसे चाहता है। living a faithful life is what the Lord desires फेथफुल of लाइफ us. का मतलब क्या है? What is faithful life? 1 John 1:9, 1 John 1:9. 1 John 1:9 में क्या लिखा है? What is written in 1 जब John कभी मुझसे 1:9? पाप हुआ तो उसका रिपेंट करो, मन फिराओ, प्रभु के पास लौट आओ। So whenever I sin, I go to the Lord and confess my sins. अगर हम कहेंगे मुझ में पाप नहीं है If I say I do not have sin, तो मैं ठोकर खाता हूँ। then I will fall. सो एवरी डे वी नीड टू लिव अ रिपेंटेंट लाइफ डियर मिस्टर। हर दिन हमें मन फिरावा का लाइफ जीना है, Every day we need to live a repentant life. हर दिन हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए Every day we need His grace. और हम वो फेथफुल लाइफ जी सकेंगे Then we will be able to be क्योंकि faithful. प्रभु का आत्मा हमारी सहायता करेगा। Because the Spirit of the Lord will help us. आमीन। Amen.